Yes, sir. Good morning. Yeah, fine. So, in this semester, sixth semester, we'll be studying a subject E604, electric drives. Uh, I start with the introduction of this. We have studied up till now electrical machines 1, electrical machines 2, and power electronics. So, the basics of this subject comes from these three subjects. I advise you all to get a brush up of all the concepts what you have covered in electrical machines 1 and 2 and power electronics. Okay. Also, at different points, I'll also be explaining some parts of those concepts relating to electrical machines and power electronics. But still, some parts are then advancement of the topics what you have covered up till now in the previous semesters. Okay, so here we go for a very brief introduction about the syllabus, what you'll go through in electric drives EE 604. The very first thing is that, as you very well know, that you are in an undergraduate course. So, not all the concepts will be covered over here. The basics will be covered about electrical drives or electric drives over here, and some precise and special topics will also be covered uh, under the unit fifth and unit fourth, and still a lot of information is there to acquire in this subject relating to electrical machines and power electronics also. Okay. Plus, the thing is that the application of power electronics in different areas of electrical engineering will be taken care of in this subject. So, first of all, in Unit 1, we'll be discussing about the basic concepts of drives. What is a drive? What are the components of drive? What thing you call a drive? And what are the different types of drives? What you have? Electrical, mechanical. What are their advantages and disadvantages of having electrical and mechanical drives? What are particular advantages of electric drives? Then you go for the topics that relate to machines. We go to a part of the ड्राइव अभी हम देखेंगे क्या चीज़ कैसे होती है वी गो टू पार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्राइव्स we'll be explaining all those parts of drives, so how they are assembled and what are the conditions of their connections, synchronizations, all those will be covered over here, there. Before that, individual components of those drives will be discussed such that their properties are well known, and then we go for a combination of all those components to form a drive. Okay, in that topics we'll be covering the starting and the speed control of motors, AC and DC both, the types of transients what happen in electrical and mechanical systems, and time and energy calculations, and the load that is connected, obviously that is a mechanical load, and the equalization, and the topics related to mechanical loads. After that, covering this part, we'll be having um, two basic fields in which we'll be studying. We'll be having DC machine drives and AC machine drives. In case of AC machine, and we'll be first into DC machine drives. We'll be talking about all the converters that are used to produce DC, to control DC motors, because the characteristics are already studied, would have been studied in Unit 1.
So we'll be talking about the applications of power electronics on these DC machines using different types of converters that provide DC, and then we'll be shifting to AC drives. AC drives means that the machines, the drives that use AC motors or AC machines are known as AC drives. Then we'll go to the basics of AC motors. Then we'll go for the converters that are used to control AC motors and AC machines. And then we'll go for different types of control details that happen to be there in case of AC systems. Then after that, we further classify these AC systems into two ways. The first one is single phase and three phase, and the second one is induction and synchronous. You have single phase and three phase induction motors, and you have single phase and three phase synchronous motors or synchronous machines, both. ठीक है, तो we'll be discussing individually about three-phase AC motors, in which we'll be having induction motors. Then we'll be discussing about single-phase induction motors. Then we'll be going to synchronous machine drives, in which we'll be studying about synchronous machines, that is three-phase and then also single-phase. Okay, and at last we'll be going to some specific topics about special machines and how they are controlled. ठीक है, स्विच रिलक्टेंस मोटर्स हैं, ठीक है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देन वी हैव आल्सो these sinusoidal and rectangular fed systems or AC machines. Then we have closed loop control. ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें डिस्कस करी जाएंगी स्पेशल ऑपरेशंस में ऑफ these electric drives. The basic book we will be following at one point of time will be, at most of the points of time will be this. No, not this one. This. GK Dubey, Fundamentals of Electric Drives. Okay. Most of the part will be covered from this book. We'll be also referring this book. This is a bit say advanced level book, but all the material, or say most of the material, will be provided by me to you on the classroom. So I'll be also generating a classroom for this subject, and we'll be having material, the reference material on that classroom, plus your sessional tests. That is, the midterm exam will also be conducted on the same classroom. So you'll be having a link on your email to join that classroom. You can join that classroom and get an update of all the material and the information what is required at different points of time. Okay, so today we start with the basic concept of drives. Okay, so let me change the slide. Okay, this is the basic block diagram of an electric drive. Drives employing the very first thing what you have to consider is that you have a prime mover, and what you have to do, you have a prime mover and you have to run a mechanical load on it with the help of that prime mover. So you can have a prime mover, say of IC engine type thing, or you can also have an electrical motor that can be used as a prime mover. Both of them have a mechanical output. The thing is that whenever you have any type of load, here we are talking about mechanical load particularly. इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में हम जब भी बात करेंगे लोड की, तो उसका मतलब यही होगा कि वो मैकेनिकल लोड है, unless and until specified that it is an electrical load. अभी तक हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब भी बात करते थे तो हम हमेशा बात यही करते थे कि जब भी आप लोड कहेंगे तो उसका मतलब इलेक्ट्रिकल लोड है. इलेक्ट्रिकल लोड मीन्स दैट it is fed electrical energy
and it consumes that and gives some type of output. जैसे आपके पास मोटर है, तो मोटर is an electrical load. It when the machine works as a motor, it an input form of energy is electrical and the output is mechanical. ऐसे ही आपके पास लाइटिंग है, लाइटिंग लोड है, वो भी इलेक्ट्रिकल लोड कहलाता है. हीटिंग लोड है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग लोड, वो भी इलेक्ट्रिकल लोड होगा. कैसे होगा कि लाइटिंग में क्या हो रहा है, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन एज इनपुट, द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी. ऐसे ही आपके पास जो है वो हीटिंग लोड है, तो हीटिंग लोड में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आप इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट जो है वो आपके पास हीट एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है. ठीक है, तो यू कंसिडर दीज टू बी इलेक्ट्रिकल लोड्स. Now, when we talk about a drive, what is drive? You are actually, drives are motion controlled devices, motion controlled devices, or systems. Motion control systems or motion control devices connected in a particular fashion are known as drives. Motion control की बात कहाँ से आती है? Whenever you are into any mechanical output, दो तरह के मैकेनिकल आउटपुट्स होते हैं आपके पास. जैसे कोई भी आपको काम करना है तो यू हैव ए डेफिनेट वेज ऑफ मोशन. यू कैन नॉट हैव एन एब्रप्ट मोशन. या तो वो मोशन लीनियर होगा या रोटेशनल होगा. ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो आपके पास मोशन में होती हैं. तो व्हेन यू एम्प्लॉय मोशन कंट्रोल systems or devices, in that case what happens is that you have a particular type of load. जैसे आपके पास you have a car. ठीक है, you have a car and what is it is used to, या कोई भी आपके पास दूसरा IC engine based system है, तो what is used, it is used to transport people. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि दैट इट मस्ट हैव सर्टेन क्वालिटीज़, कि उसमें बैठने की जगह हो. ठीक है, ये सब हो, ये सारी भी चीज़ें तो उसकी उसमें हो गई जो आपकी रिक्वायरमेंट्स वैसी हैं. इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स के टर्म्स में, ये सॉरी, जब हम ड्राइव्स के रिक्वायरमेंट्स के टर्म्स में आएंगे, तो इट मस्ट बी सच दैट वट एवर प्राइम मूवर इज ड्राइविंग दैट सिस्टम मस्ट बी एबल टू कैरी दैट और ड्राइव दैट सिस्टम. यानी आपके पास जो इंजन लगा हुआ है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उस लोड को जो आप उस पर रख रहे हैं, दैट कैन मूव दैट लोड विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? देयर आर सर्टेन स्पीड रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट, देयर आर सर्टेन टॉर्क रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट. कि आपके पास स्टार्टिंग के वक्त जो है वो ज़्यादा टॉर्क चाहिए है, जब मशीन चलने लगे आपके पास लगे, then you don't require that much of torque. You require much you need to increase the speed or accelerate the speed. Then after that you need to brake that system. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास, and then you require to stop that system. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास provisions होने चाहिए. So you must have a control mechanism that can actually work as an interface between the source and the load. ठीक है, इंटरफेस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वो सोर्स से ऐसी एनर्जी एक्वायर करे कि वो लोड को जब डिलीवर करे तो उतनी ही करे जितनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट या है, और उसी तरीके से करे या उन कैरेक्टरिस्टिक्स से करे जितनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट ड्राइव इज. हियर व्हाट यू हैव एन आईसी इंजन. इन केस ऑफ ए कार, सिंपल कार, यू हैव एन आईसी इंजन, यू हैव मैकेनिकल गियर सिस्टम. ठीक है, तो और उसके बाद आपके पास उसका थ्रॉटल भी होता है वो चेंज करने के लिए इंजन आपके पास प्राइम मूवर स्पीड. तो व्हाट यू डू, यू स्विच ऑन योर कार और स्टार्ट योर कार, तो आपके पास कार एक आइडल स्पीड पे स्टार्ट हो जाती है इफ़ यू रिमूव योर फुट फ्रॉम द थ्रॉटल. ठीक है, देन द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन हैव ए वेरिएबल आउटपुट फ्रॉम दैट प्राइम मूवर. प्राइम मूवर क्या है यहाँ पे? आईसी इंजन है, तो यू कैन हैव ए वेरिएबल आउटपुट फ्रॉम इट. वेरिएबल आउटपुट कैसे होगा? दैट इफ यू प्रेस द फुट पैडल ऑफ द एक्सेलरेटर, what will happen, the speed of that prime mover change. ठीक है, तो इसकी स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेरी करती हैं जैसे जैसे आप उसका थ्रॉटल वो कर देते हैं, पुश करते हैं या वापस उसे स्टेप बैक करते हैं. ठीक है, तो यू हैव
a variation, but only this variation cannot lead you to achieve what is required at the load side. तो व्हाट यू डू, यू एम्प्लॉय गियर्स। आपने जो है मैकेनिकल गियर्स लगाए, जैसे आपने साइकिल में भी गियर्स देखे होंगे, वो सबसे बाहर सबसे आसानी से दिख जाते हैं। ठीक है, यही गियर्स जो है मोटरसाइकिल्स में भी होते हैं, स्कूटीज में भी होते हैं, और कार्स में भी होते हैं, फिर हैवी व्हीकल्स में भी होते हैं। तो दीज आर नोन एज मैकेनिकल गियर्स। मैकेनिकल गियर्स कैसे होते हैं, आपने साइकिल में देखे होंगे, दैट यू हैव टीथ अराउंड ए सर्कुलर फ्रेम, ठीक है, एंड द teeth are dragged by some sort of a chain। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल होता है। और दूसरी तरफ जो है फिक्स चेन होती है, और एक तरफ जैसे आपके पास जहाँ से आप पैडल करते हैं आजकल, तो वहाँ भी चेन्स में डिफरेंट टीथ आते हैं, 2-3 गियर्स आगे भी होते हैं, 5-7 गियर्स पीछे भी होते हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली डन इज दैट, नॉर्मल कार्स में ऐसा नहीं होता। प्राइम मूवर जहाँ पे चल रहा है शाफ्ट, वहाँ पे एक ही टीथ के गियर्स होंगे, और जो आपके पास रनिंग गियर है या लोड पे कनेक्टेड व्हील पे जो है, वहाँ पे जो है वो आपके पास 4, 5, 6, 7 जितने भी गियर्स हों वहाँ लगे होंगे। एंड अकॉर्डिंगली स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर रिमेन्स controlled by your throttle, and it drives the wheel according to the gears what you shift। ठीक है, एक और होता है जो डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम कहलाता है, जिसमें चेन वाला अरेंजमेंट नहीं होता, तो टीथ ही एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं साथ में। इट इज नोन एज डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम, जो आपके पास कार्स में होता है। मोटरसाइकिल में तो चेन ड्राइव सिस्टम होता है, कार्स में जो है वो डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम होता है, जिसमें डायरेक्टली वो टीथ जो है आके दूसरे वाले प्राइम मूवर टीथ से आके मैच कर जाते हैं और फिक्स हो जाते हैं। तो उन दोनों के बीच में कोई वो नहीं होता। जैसे आपने घड़ियों वगैरह में देखा होगा, छोटी घड़ियां जो होती हैं कि एक गियर दूसरे गियर में विदाउट एनी चेन मैकेनिज्म डायरेक्टली फिट होता है। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली इज डन ओवर हियर इज दैट, इन सब बातों की बात यह है कि you require a certain speed and a certain torque to be available at the wheels of the car. So that is why you go on changing the gears, the throttle speed, all that, ताकि आपके पास जो रिक्वायर्ड वो है कि हम इतनी स्पीड पे जब स्टार्ट करें तो हमारे पास इतना टॉर्क हो, तो आप उस पर बड़ा गियर डालते हैं जिसका नंबर छोटा होता है, जैसे 1। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है तो गियर जो है वो साइज छोटा होता जाता है, तो उसका टॉर्क कम होता जाता है और स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे आपने साइकिल्स में भी देखा होगा कि जब आप उसे पैडल करना शुरू करते हैं तो इनिशियली आप सबसे बड़े गियर पे रखते हैं। बड़ा का मतलब साइज में बड़ा, नंबर आमतौर से उसका छोटा ही होता है। तो इस चीज़ से आप हमेशा ध्यान रखेंगे दैट जितना बड़ा गियर होता है, बड़ा इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज इन टर्म्स ऑफ रेडियस of that wheel on which those teeth are put is largest for the smallest number। क्योंकि गिनती हमेशा एक से ही शुरू होगी, स्टार्टिंग हमेशा 0 स्पीड से ही होगी। ठीक है, तो आपको पहला गियर जो माना जाएगा वही जिससे आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़े रेडियस के या सबसे बड़े सर्कमफ्रेंस के गियर पे हम स्टार्ट करते हैं। तो साइज में सबसे बड़ा होता है गियर, और नंबर में सबसे छोटा होता है वो, यानी गियर नंबर 1 जो है वो साइज में सबसे बड़ा होगा और नंबर में सबसे छोटा होगा, क्योंकि 1 है, 1 सबसे, उसके बाद 2 आएगा। तो 2 का साइज जो है वो 1 के साइज से छोटा होगा, बट 2 इटसेल्फ नंबर इज मोर देन 1। ठीक है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जितना छोटा गियर होगा। गियर छोटा करने का मतलब हम आमतौर से हम यहाँ पे यही बात करेंगे, साइज छोटा करना। तो नंबर उल्टे के उसमें मत चलिएगा। अगर हम कहते हैं गियर छोटा कर रहे हैं, इट इट मीन्स दैट, और वी आर डिक्रीजिंग द गियर साइज, means that we are increasing the gear number, because numbering is always done from starting, that is the largest gear। ठीक है, साइकिल में भी आपने देखा होगा जब एक नंबर गियर पे होता है तो सबसे ज़्यादा सरकमफ्रेंस वाले गियर पे वो आपके पास उसकी ड्राइव चेन होती है। ठीक है, सो व्हाट इज नाउ द जिस्ट ऑफ ऑल दीज, ये तो सारी चीज़ें आपको पता भी हैं। व्हाट इज द जिस्ट ऑफ ऑल दीज इज दैट यू हैव अ सोर्स एंड यू हैव अ लोड। सोर्स क्या है, आपके पास आईसी इंजन है, और लोड क्या है, आपके पास ड्राइव व्हील्स हैं उसके कार के। ठीक है, then you have to match your requirements or match the requirements of the load with the source. For all that system to be put, you require a drive।
So we consider a drive to be a source up till the load, and in between the interfacing systems or the interfacing objects, whatever you have, and all the required associated कंट्रोलिंग सेंसिंग ये सारी चीज़ें मिला के जो है आपके पास एक पूरी इलेक्ट्रिकल ड्राइव बनती है। अब यहाँ तो ड्राइव की बात हुई, ये बात हमने करी मैकेनिकल ड्राइव की। अब if you have an electric drive, the similarly what you have in case of electric cars these days, हम बिल्कुल parallel example लेते हैं। तो what you have a battery bank के बाद you have converters, then you have motor, and then you have motor directly connected to the wheel. Why? Because उसमें gears नहीं होते, because motors are quite flexible to give a speed from 0 up till their rated speed। ठीक है, तो उसमें गियर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम पीछे उसके कन्वर्टर लगा देते हैं मोटर के, तो हम कंट्रोल उसका बहुत आसानी से वो कर लेते हैं। ठीक है, सो एनी system that employs electric motors are known as electric drives. And the main objective of the drive is that we have to achieve the load characteristics from the prime mover। ठीक है, तो अगर हम इसमें जो है वन थिंग मोर इज टू बी टेकन केयर ऑफ इज दैट वी हैव ए सोर्स एंड वी हैव अ लोड। ठीक है, इसमें सोर्स क्या था, एक बैटरी बैंक था और मोटर था इलेक्ट्रिक कार में। ठीक है, और लोड आपके पास वही व्हील आउटपुट था जो आपको चाहिए। अब इसमें जो है मैकेनिकल, उसमें इंजन है आपके पास, इंजन के कुछ कंट्रोल्स हैं, थ्रॉटल है और ये सब है, और आउटपुट आपके पास फिर वही व्हील्स हैं। ठीक है, तो द थिंग इज दैट इफ यू हैव अ कार से, तो व्हाट हैपेंस दैट यू हैव अ फिक्स्ड सीटिंग कैपेसिटी, आपके पास 4 की 5 की कैपेसिटी है, अगर बाइक है 2 की कैपेसिटी है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ इफ़ यू आर गोइंग टू सेट पर्सनस एंड मेक सेट पर्सनस इन दैट कार, तो वो उसका वेट होगा 60 to 80 जैसा भी आपके पास है। तो अगर वो 5 लोग बैठेंगे, तो अगर यू हैव टू ड्रैग अ लोड ऑफ से 400 kgs। ठीक है, एंड अ मिनिमम लोड ऑफ से 80 kgs। ऐसे करके अगर एक आदमी बैठा है तो 80 किलो होगा, और अगर पांचों बैठ रहे हैं तो 400 किलो होगा। तो यू मस्ट हैव ए drive that can or you must have a system that is capable of driving from that smallest load up till the largest load। यानी 80 किलो से 400 किलो तक के बीच में वो अपनी प्रॉपरली चलनी चाहिए। So here the very first thing and what is the most important thing in case of drives is that you always have to match the prime mover characteristics with the load characteristics। यानी लोड फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड का मतलब ये है हम लोड पहले से डिफाइन कर देते हैं। हमने डिफाइन कर दिया इसमें एक आदमी से 5 आदमी तक बैठेंगे। अब हमें एक ऐसी चीज बनानी है जो एक आदमी से 5 आदमी तक चलाए। अब ऐसी हमारी मर्जी पे नहीं, और उसी हिसाब से हम उसका पीछे इंजन चूज करेंगे कि जो है वो ऐसा इंजन होना चाहिए कि जो इतना चला ले, या इस स्पीड पे इतना लोड करके चला ले। यानी स्पीड और टॉर्क रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपके पास, वो हमेशा फिक्स कर दी जाती हैं शुरू से ही लोड की, और इस मामले में सिर्फ लोड की ही चलती है। यू कैन नॉट ऑल्टर द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ इवन इफ यू हैव अ क्लासरूम, यू रिक्वायर 6 फैंस इन इट से, ठीक है, एंड यू रिक्वायर 8 ट्यूबलाइट्स इन इट। तो इट्स नॉट दैट कि आप 4 पंखों से काम चला लोगे और 2 ट्यूबलाइट से काम चला लोगे। आपको 6 पंखे चाहिए ही चाहिए हैं और 8 ट्यूबलाइट चाहिए ही चाहिए हैं। अब ये देखिए कि वो सप्लाई कहाँ से लाएंगे जो 6 और 8 चल जाए। अगर आप उसमें एक जनरेटर लगाएंगे अलग से लाके, तो आपको इतना लगाना पड़ेगा जो कि डिफाइन होंगी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर लोड से। तो लोड्स एक्चुअली फर्स्ट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। एंड आपके पास एक ट्रक आपने बनाना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, से यू हैव टू कैरी अ 20 टन लोड इन दैट ट्रक। तो आप एक ऐसा इंजन चूज करेंगे, एक ऐसा ड्राइव सिस्टम चूज करेंगे, ऐसा बॉडी चूज करेंगे, ऐसी चेसिस चूज करेंगे जो कि वो 20 टन को ले जा सके। ठीक है, सो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑल द कंडीशंस, एनी इलेक्ट्रिक इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, load characteristics are always fixed and they are defined beforehand, and after that you choose a system that can drive that load।
either electrically or mechanically, whatever it is. Okay, so now we come to the basic thing. So what is now that we have a load and we have a source. ठीक है. What is this load? This is a mechanical load. ये ड्राइव्स में दोबारा ये बात नहीं होगी कि ये लोड कैसा है, ये हमेशा एक मैकेनिकल लोड ही होगा. And you have a source. Whenever you talk about source in an electrical drive, that source is always electrical. That may be AC, DC, or any in any form, either of them. And the rating is accordingly specified. जैसे आपके पास स्मॉल रिमोट कंट्रोल कार है तो उसमें सोर्स जो है वो डीसी होगा और उसकी वोल्टेज सप्लाई 3.7 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स ऐसे करके होगी. अगर कोई बड़ा यहाँ पे आप मोटर चला रहे हैं, कोई और लोड चला रहे हैं तो इट मे बी 400 वोल्ट एसी और 11 केवी एसी, कुछ भी हो सकता है. तो इन ऑल द केसेस दिस सोर्स हैज टू बी एन इलेक्ट्रिकल वन. एंड द सेकंड थिंग इज दैट इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, ऑफ एनी रेटिंग. ठीक है. सो चाहे वो छोटा सिस्टम हो चाहे बड़ा सिस्टम हो, दिस रिमेन्स अ सोर्स एंड द डेफिनेशन ऑफ सोर्स इज टू बी स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू दैट. अब जैसे आपके पास एक लोड है, आपको एक कार चलानी है जिसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास बैठ के जाना है उसमें, तो आप इसमें कोई 3.7 वोल्ट का सोर्स नहीं लगा देंगे. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली जो भी मोटर चाहेगा, जो जिस मोटर की आप जो आपके पास जिस रेटिंग का मोटर होगा जो कि इसे ड्राइव कर सके लोड को, वो मोटर आप चूज करेंगे. देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, यू विल अकॉर्डिंगली चूज द सोर्स दैट कैन ड्राइव दैट मोटर. तो चलती किसकी है? चलती लोड की है. लोड हमेशा डिसाइड करता है कि सिस्टम कैसा बनाना है, और लोड बिफोर हैंड डिसाइड होता है कि क्या होगा. हम कभी ऐसा नहीं बनाते कि एक क्लासरूम ऐसा बनाओ जिसमें 4 पंखे लगे. पहले क्लासरूम बनता है, उसके बाद उसमें पंखे लगते हैं. ठीक है. तो हमेशा पहले लोड डिफाइन होता है और उसके बाद जो है वो उसके पीछे की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी जाती हैं. Okay, so when we talk about an electric drive, drives using electrical motors are known as electric drives. Then these are the basic components of electric drives. That you have a source, you have a power modulator. Power modulator, according to the definition, modulates the power. It has 4 functions, 4 major functions. बताएंगे हम next class में से elaborate करके क्या चीज़ है, कैसे है. पावर मॉड्यूलेटर एक्चुअली मॉड्यूलेट्स द पावर. मॉड्यूलेट का मतलब चेंज करना, अडाप्ट कराना, ऐसे करके कहते हैं. मॉड्यूलेट्स द पावर अकॉर्डिंग टू द मोटर एंड लोड रिक्वायरमेंट्स एंड मैचेस इट टू द सोर्स. ठीक है. देन यू हैव द मोटर दैट इज ड्रिवन बाय दैट पावर मॉड्यूलेटर दैट ड्राइव्स द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स and modulates it and make it in accordance to the motor and load system. Then you have different sensing units. सेंसिंग यूनिट्स में स्पीड सेंसिंग हो सकता है, करंट सेंसिंग हो सकता है, वोल्टेज सेंसिंग हो सकता है, फ्रीक्वेंसी सेंसिंग हो सकता है, और बहुत सारी सेंसिंग, टेम्परेचर सेंसिंग हो सकता है. ठीक है. ये सारी सेंसिंग वो है. देन यू गो फॉर द कंट्रोल पार्ट. कंट्रोल पार्ट जैसे आपके पास ये पावर मॉड्यूलेटर जो होगा, इसे कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा कि करंट ज़्यादा हो रही है, उसे कम करना है, ये करना, वो करना, जो भी सारी चीज़ें हैं. तो जनरली इट इज़ अ कन्वर्टर, इट इज़ अ पावर कन्वर्टर दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस. तो इसमें ये सारे कंट्रोल, चाहे वो इन्वर्टर लगा हो, चाहे वो चॉपर लगा हो, ठीक है, चाहे डेल्टा कंट्रोल करे, चाहे अल्फा कंट्रोल करे, तो ठीक है. तो ये आपके पास कंट्रोल यूनिट होता है, चाहे बेस करंट कंट्रोल करे. Then it goes to the power modulator, and again it works in a closed loop system such that the load characteristics are realized. लोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? देखिए, आपने अभी तक जो मोटर में पढ़ा होगा स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी. ठीक है. मोटर का आउटपुट जो है, इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, आउटपुट होता है मैकेनिकल फॉर्म. मैकेनिकल आउटपुट हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टॉर्क. यही 2 मेजर डेफिनेशंस होती हैं. तो जब हमने आपने देखा होगा कि कोई भी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हमने, डीसी सीरीज की, डीसी शंट की, 3 फेज इंडक्शन की, सिंक्रोनस की, तो हमेशा जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे आप, तो यू ऑलवेज ड्रॉ इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टॉर्क.
These are known as output characteristics. ठीक है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्योंकि वो इसका आउटपुट क्या है? मैकेनिकल है. ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ स्पीड एंड टॉर्क है. ठीक है, तो द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर are matched are to or to be matched with the load characteristics. यानी लोड की भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टॉर्क. तो स्पीड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको चाहिए? आपको गियर 1 पे इतना चलाना है या इतनी स्पीड पे इतना चलाना है, फिर दूसरे गियर पे इतना चलाना है, तो आपने ये पहले से डिफाइन कर लिया है. अब ये डेफिनेशन मेट करवानी है आपको उस मोटर से. ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली डन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स इज दैट द मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, द मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्टर्ड according to the load characteristics, and that alteration is done through the power modulator using sensing and control circuit. आपने अभी तक जो देखा होगा, आपने जैसे स्पीड कंट्रोल देखा होगा उसमें डीसी शंट मोटर में, जो हमने प्रैक्टिकल भी किया कभी, तो उसमें क्या है कि दैट स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई आपने एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, फिर जब आपने वोल्टेज कम कर दी तो वो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे आ गई. ठीक है, आपने और कम करी तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स और नीचे आ गई स्ट्रेट लाइंस में ऐसे करके. ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली डन इज दैट देयर इज एन ऑल्टरेशन ऑफ मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स. आपने मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्टर करी, और क्यों और इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? बिकॉज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर टू बी मैच्ड विद द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स. मैच करने का मतलब क्या होता है कि वही स्पीड टॉर्क पॉइंट्स लाना जो कि हमें लोड में रन करने के लिए चाहिए हैं. तो मोटर को उन जगह पे लेके आते हैं, वो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर की ऐसी जगह, उस जगह पे लेके आते हैं जहां पे हमने लोड को डिफाइन कर रखा है. डिफाइन का मतलब स्पीड और टॉर्क उसका डिफाइन कर रखा है या बता रखा है, यहाँ पे ये ऐसे चलेगा. कैसे चलेगा? वो वाला मोटर चलाएगा जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे वैसी ही होंगी. तो मोटर को की कैरेक्टरिस्टिक्स को वहां पे वैसा बनाने के लिए पावर मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करते हैं, सच दैट the motor delivers those characteristics to the load. This is all about electric drives. Now we'll be, मोटी बात हो गई. Now we'll be discussing one by one what are the types of sources, what are the different types of modulators, what are the different types of motors, different types of loads, how do you define the characteristics of those loads, then types of sensing, type of control. ये सारी चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कमिंग क्लासेस में. ठीक है, and then we'll be going to AC drives and DC drives particularly. ठीक है, anybody wants to ask anything regarding the topic that is covered today? किसी को कुछ पूछना है? नो सर. चलो ठीक. नो सर. ये मैं आपके पास अपलोड भी कर दूंगा उस पे क्लासरूम पे. ठीक है, तो आप लोग जब क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे तो आप यू जस्ट गो थ्रू इट. Most of the things are available in the material what I provide, but still सुनना कभी कभी ज़रूरी इसलिए भी होता है क्लास में, because a lot of things happen over here and they are not booked in the book. वो किताब में नहीं होती. तो अगर आप लोग सुनेंगे तो यू एक्चुअली रिमेंबर. जैसे कंपैरिजन है जो मैंने आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक ड्राइव में बताया, ये आपको ना तो सिलेबस में मिलेगा और ना ही किताब में मिलेगा. तो it would be easy to understand if you listen properly. ठीक है, तो I advise you to listen properly and just go through it, तो things would be quite simple then. और उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी चीज़ है then you can ask. ठीक है, अटेंडेंस में इसके स्नैपशॉट, हाँ अटेंडेंस में इसके स्नैपशॉट से ले लूँगा, तो उसकी आप फिक्र क्या करें. ओके सर. ठीक है, चलो, थैंक Will यू. be dealing with the classroom link. हाँ हाँ, I'll be mailing it to you. जैसे आपके पास ये वाला मेल आया वैसे वाला भी मेल आ जाएगा. ओके सर. ठीक है ना, चलो ठीक, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.